Hi everyone, I Shurujit welcome you all on Econometrics Day channel. आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 7 का मैथमेटिक्स। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का क्लास। This could be us. So back to what I was saying. Could be us. Now today class 7 students, we are again going to continue with chapter 8 comparing quantities, and we are going to start today workout problems. That means workout exercise you can say. And today's part is part 14. Those who have not watched the previous parts, that is from part 1 to part 13, I have shared the link at the end of the video, or you can check it out in the playlist and see those parts, and then you see this workout portion. Why? Because if you know the concept nicely, which I have taught in the previous parts, then only these sums will be easy for you. Okay, and workout sums are similar to the previous exercises. Okay, so let us start the workout portion. So first question is, choose the correct option. So they are telling you have to choose the correct option. That means this is only known as MCQ. Okay, multiple choice questions. Okay, so first question, 2 meter to 125 centimeter expressed as ratio in simplest form. That means this one you have to convert it into simplest form. So like this sums we have done. So let us do the rough work on this side. Clear no? So 2 meter to 125 centimeter. So 2 meter by 125 centimeter. So this one I will write first. Now both the units are not same in the numerator and denominator, so we will make it same. So that means 2 meter, meter into centimeter will be what? We have to multiply with 100 and it will become centimeter, and downside is what? 125 centimeter. Now centimeter cuts. Okay, now I have told you that 25, how much the 100? 4s, and 25, how much the 125? 5s. Clear no? So what you get here? You are getting 2 into 4, 8, and downside is 5. That means 8 is to 5. So we got the answer 8 is to 5. Here which option is the correct one? Roman 4, you can see. So the answer will be what? A, and it will be which one? Roman 4. Okay, 8 is to 5. Clear? Now we will come to question number B. If x is to 30, proportion to 7 is to 5. Clear no? Then x is how much? Clear? So let us do, this was number A, now this is number B. So number B is telling what? X is to 30, proportion, okay, 7 is to 5. Okay, 7 is to 5. Now this thing I can write like this way, x by 30, and proportion means equal to 7 by 5. Now after that we will multiply, cross multiply this one numerator with this one denominator. Okay, so 5x, and 30 into 7. So 30 into 7. 30 into 7 we can make it 210, but I will keep it like that. Why? Because in the next step I will do katakati. So it will be easy. So x equal to 30 into 7, and downside 5 will come. Clear? Now 5 1s are 5, 5 6s are 30. So x equal to 6 into 7, 42. So we got the answer. X value is what? 42. Here which one is 42? Roman 1, Roman 2, Roman 3, Roman 4. Yes, Roman 1. So we will write here answer. Okay, and answer which option? Answer B, and the option is what? Roman 1, and it is how much? 42. We got the 42. Now here number C, let us do. So A and B I think you have understood nicely. Now number C,
a car can cover a distance of 300 kilometer. That means a car can go how much distance? Na 300 kilometer on 24 liters of petrol. मतलब 24 लीटर पेट्रोल में ये कार कितना दूर जाएगा ना 300 किलोमीटर. Now how far can it travel? So they are asking to find out the distance, how far it can travel. It can travel means they are telling us to find out the distance on 16 liters of petrol. तो जब 16 लीटर पेट्रोल रहेगा तब कितना डिस्टेंस वो जाएगा. वेरी इजी वन. देखो जो भी तुमको निकालना है उसको तुमको राइट हैंड साइड में रखना है. तो तुमको डिस्टेंस निकालना है तो वो राइट हैंड साइड में रहेगा और लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा? हेयर 24 लीटर्स. तो इन मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये एमसीक्यू है, पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं. इन 24 लीटर्स, ओके, एल लिख रहा हूं, ओके, नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हो. इन 24 लीटर्स, एल कैपिटल एल, इन 24 लीटर्स कॉमा a car can travel, okay, a car travels क्या? कितना किलोमीटर? 300 किलोमीटर, ठीक है. 24 लीटर में एक कार ट्रेवल्स 300 किलोमीटर. अभी हम लोग निकालेंगे इन 1 लीटर ए कार ट्रेवल्स. तो 1 लीटर में वो ज्यादा जाएगा ना कम जाएगा? कम जाएगा. तो कम जाने से मतलब डिवाइड, ये मैंने पहले भी सिखाया है, तो डिवाइडेड बाय 24 लीटर और ऊपर में इधर में किलोमीटर, ठीक है. उसके बाद हमको हाउ फार, कितना डिस्टेंस वो जाएगा ऑन 16 लीटर. सो 16 लीटर का निकालना है. सो नाउ द लास्ट सेंटेंस, इन 16 लीटर ए कार ट्रेवल्स. तो क्या करेंगे? 16 लीटर, 1 लीटर में इतना जा रहा है तो 16 लीटर में कितना जाएगा? ज़्यादा जाएगा ना कम जाएगा? ज़्यादा मतलब मल्टीप्लाई. सो व्हाट वी विल डू, 300 किलोमीटर, नीचे में लिख रहा हूँ, इधर लिखना चाहिए, हाँ, 24 लीटर इंटू 16 लीटर, ठीक है. अभी इसको कैंसिलेशन करने से आंसर आ जाएगा. चलो कैसे कैंसिलेशन करेंगे? इधर में मैं थोड़ा इधर करता हूं ताकि सबको दिखाई दे. सो 300 किलोमीटर, नीचे में 24 लीटर इंटू 16 लीटर, ठीक है. अभी पहले लीटर कैंसिल हो जाएगा. अभी 24 है नीचे में, 16 है ऊपर में, तो 8 का टेबल गिनती में 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, हो गया कटाकटी, एक ठो कटाकटी. अभी 3 1 जा 3, 3 1 जा देन 0 0, तो कितना आ गया? 100 किलोमीटर इंटू 2, तो 100 इंटू 2 200 किलोमीटर. तो आ गया आंसर. चलो देखते हैं कौन सा मिल रहा है. रोमन 1 नहीं, रोमन 2, हाँ देखो 200 किलोमीटर दिया हुआ है. तो क्या लिखेंगे आंसर? ये सी है, ठीक है, ये सी है. सी का कौन सा ऑप्शन? रोमन 2, और आ गया 200 किलोमीटर. तो मेरा ख्याल से सभी बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 1 का एमसीक्यू का ए, बी और सी समझ गए हो कैसे करना है. नाउ क्लास 7 स्टूडेंट्स वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर डी, 1D, ठीक है. ए बी सी हो गया, अभी डी करेंगे. सो डी में क्या है? 32% एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल. मतलब 32% को तुमको डेसिमल में कन्वर्ट करना है. सीधा सीधी डेसिमल में तुमको कन्वर्ट करना है. तो कैसे कन्वर्ट करोगे? सपोज इसका रफ वर्क इधर करते हैं, नंबर डी का 32%. अभी परसेंट को हटाने के लिए मैंने क्या बोला था? अगर परसेंटेज हटाएगा तो डिवाइडेड बाय 100 हो गया. उसके बाद अभी नीचे में डेसिमल चैप्टर में मैंने सिखाया था, नीचे में 2 ठो जीरो है, तो हम लोग 32 लिखेंगे, और 2 ठो जीरो जब है तो पॉइंट राइट हैंड से 2 ठो डिजिट जाएगा, 1 2, और पॉइंट इधर आ जाएगा, और पॉइंट से पहले एक ठो जीरो फॉर सेफ्टी लिखना है. तो आ गया हम लोग का आंसर 0.32. अभी देखते हैं किसके साथ ये मैच हो रहा है.
नंबर 1 रोमन 1 नो, रोमन 2 यस, रोमन 2 के साथ देखो मैच हो रहा है, तो हम लोग लिखेंगे इसका क्या आंसर डी, ऑप्शन नंबर 2। ओके, और क्या है 0.32। जैसे ही मैच हो जा रहा है, बाकी देखने का कुछ जरूरत ही नहीं है। अभी नंबर ई, 4/25 एज परसेंटेज, मतलब 4/25 को तुमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो ई का इधर करते हैं, 4/25 को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बोला था 4/25 इसको इनटू 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई भी चीज अगर तुम परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको 100% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाई व्हाट 100। नाउ काटाकाटी करेंगे। सो 5 डायरेक्टली तुम कर सकते हो, 25 4 100। जो लोग को नहीं आता, जो स्टूडेंट को नहीं आता वो क्या करेगा, 5 5 25 एंड हेयर 5 2 10 और 0। उसके बाद अगेन 5 1 5 5 4 20। नाउ 4 इंटू 4 और परसेंट बचा हुआ है, तो 4 इंटू 4 क्या होता है 16%। तो आ गया हम लोग का आंसर। चलो देखते हैं, रोमन 1 नहीं, रोमन 2, हाँ रोमन 2 16%। सो लिखेंगे ये क्या है आंसर ई है, ठीक है, और ऑप्शन क्या है रोमन 2, और क्या है आंसर 16%। तो आ गया हम लोग का ई वाला भी। ओके, नाउ एफ, क्वेश्चन नंबर एफ, इसका रफ वर्क करेंगे। व्हाट परसेंटेज ऑफ 125 इज 25। मतलब 125, व्हाट परसेंटेज ऑफ 125 इज 25, मतलब 25 आ रहा है किसके ऊपर, 125 के ऊपर। दैट मीन्स 25 you are getting out of what, out of 125. Okay, that is the meaning. What percentage of 125 is 25. Suppose your exam, okay, 100 marks exam. So what percentage of 100 is you got in the exam, suppose 60 marks is 60. That means 60 by 100. Okay, अगर एग्जाम 80 मार्क्स का है तो 80 में तुमको मिला है सपोज 60, सो 60 डिवाइडेड बाय 80। बिकॉज स्कूल में जब मार्क्स देता है टीचर कैसे लिखता है, ऊपर में पेपर के ऊपर में आंसर स्क्रिप्ट में 60 आउट ऑफ 80, ठीक है, ऐसा करके देता है, ठीक है। तो इधर में 25 आउट ऑफ 125, इसलिए मैंने लिखा 25 आउट ऑफ 125। और उसने बोला है क्या, परसेंटेज में निकालो, तो परसेंटेज मतलब आई हैव टू मल्टीप्लाई विथ 100%, ठीक है। अभी हम लोग काटाकाटी करेंगे, ठीक है। सो इधर में 5 5 25, 5 2 10, 2 एक्स्ट्रा, सो 25 5 5 25, ठीक है। फिर से हम लोग काटेंगे, 5 1 5, 5 5 25, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर से काटेंगे, 5 1 5, 5 2 10 0। तो क्या पड़ा है 1 और 20, ऊपर में 1 इंटू 20 20, और आ गया ये परसेंट, तो क्या हो गया 20%। सो लिखेंगे आंसर, ठीक है। और ये एफ का है, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, वो रोमन 1 रोमन 2 रोमन 3 रोमन 4 आ रहा है, तो रोमन 4, और क्या है 20%। सो मेरा ख्याल से यू हैव अंडरस्टूड question number 1, D, E and F nicely. Now students, those who are new in my channel, if you like this video, if you like your channel, then I would like to request all my students to please give a like, share this video more and more with your friends, classmates and relatives, and don't forget to subscribe my channel. If you subscribe, it really motivates me to make more such interesting videos for you all. And also don't forget to press the all notification bell, ting ting, so that whenever I upload such videos, you are going to get the notifications first.
Now we will move on to the next. Now we will come to question number 1G. Okay. So if Sandeep buys a product, so Sandeep is buying one product. Okay. One thing he is buying for rupees 1280 and sells it for rupees 1500. संदीप कुछ खरीद रहा है जिसका दाम कितना है 1280 रुपया और उसको बेच रहा है 1500 रुपया में. देन द प्रॉफिट परसेंट और प्रॉफिट परसेंटेज इज, सो ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस है ये, सेलिंग प्राइस है ये, सो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट होने से प्रॉफिट परसेंटेज इजीली हम लोग निकाल सकते हैं. तो उसके लिए इधर में रफ वर्क करेंगे. क्या करेंगे ना, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ठीक है, 1 सेलिंग प्राइस इज 1500 और कॉस्ट प्राइस कितना है 1280 रुपये. अभी तुम लोग सोचोगे सर पहले कॉस्ट प्राइस क्यों नहीं लिख रहे हो, ये तो हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं ना, तो टाइम सेव करने के लिए इसको ऐसा करके लिखेंगे. तो आ जाएगा क्या, प्रॉफिट. वाई, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज प्रॉफिट. तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 आ गया. अभी 0 और 8 नहीं कर सकते तो 5 को काट कर 4, ये 10 हो जाएगा. 10 माइनस 8 2 और 4 माइनस 2 2 और 1 माइनस 1 तो 0 ही होता है. सो आ गया प्रॉफिट कितना 220. अभी प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज. तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है तुम लोग को मालूम है, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100. तो प्रॉफिट कितना है रुपीस, ओके 220. कॉस्ट प्राइस कितना है रुपीस, ओके 1280 इंटू 100. क्लियर. अभी हम लोग कटाकटी करेंगे, रुपीस रुपीस कैंसिल और ये 0 कैंसिल. अभी 2 से काटेगा, ठीक है, नीचे में करते हैं नहीं तो थोड़ा डर्टी हो जाएगा, दिखाई अच्छा से नहीं देगा. तुम लोग को देखना है अच्छा से, ठीक है. अगर अच्छा से नहीं देखोगे तो समझने में नहीं आएगा. तो 2 1 जा 2 2 1 जा 2 अगेन 2 6 जा 12 2 4 जा 8 हो गया. अभी 11 से तो और नहीं काटेगा मगर 64 और 100 काटेगा. तो हम लोग क्या करेंगे 2 से, 2 3 जा 6 2 2 जा 4 और इसको 2 5 जा 10 और 0 फिर से काटेंगे. 2 1 जा 2 1 एक्स्ट्रा 12 2 6 जा 12, ओके. और इसको 2 2 जा 4 1 एक्स्ट्रा, सो 2 5 जा 10. तो कितना पड़ा है, चलो लिखते हैं 11 इंटू 25 बाई 16. तो 11 इंटू 25 निकालेंगे, ठीक है. तो 25 और 11 को मल्टीप्लाई करने से 25 पे क्रॉस फिर 5 2, ओके. सी 1 5 जा 5 1 2 जा 2 तो 7. तो आ गया कितना, चलो इधर करते हैं, ठीक है, बहुत जगह है. तो कितना आ गया हम लोग का 275 बाई 16 और इसको डिवाइड करने से ही हम लोग का आंसर निकल आएगा. चलो इसको डिवाइड करते हैं, इधर में अच्छा से डिवाइड करते हैं, ठीक है. 275 और 16, तो 16 2 से नहीं जाएगा तो 27 लेना पड़ेगा, 2 डिजिट्स. So 16 1s are 16. Now 7 minus 6 is what? 1. और 2 minus 1 1. ठीक है. उसके बाद इधर में 5 नीचे में आ जाएगा, ओके, विल कम डाउन, ओके. नाउ 115. तो 16 हाउ मच आर 115. सो 16 चलो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं. 7 6 जा 42 4 7 1 जा 7 11, सो 112. सो 7 से जाएगा 16 7 जा 112. तो कितना आ गया 3 आ गया. अभी और डिजिट नहीं है तो इधर में डेसिमल पॉइंट देंगे तो इधर में 0 आ जाएगा. फिर से 1 जा 16 1 जा 16. अभी कितना आएगा 14 लेफ्ट, ओके. नाउ अगेन आई कैन पुट अ 0, सो 140 कमिंग. सो 7 जा 112. चलो 8 जा देखते हैं कितना होता है 8 8 6 जा 48 8 1 जा 8 प्लस 4 12 128. तो जाएगा 8 से 8 जा 128.
तो अभी कितना पड़ा है? इफ यू वांट टू डू, सो वी विल कट 3 10, तो 2 है, और 3 माइनस 2 1, तो कितना आ गया? ये इधर में कर रहे हैं, सो 12 आ गया, लेफ्ट 12, और फिर से हम लोग एक तो 0 देंगे, ठीक है, 0, यहाँ पे हम लोग 12 रिमाइंडर आया ना, तो 0 दे सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज 120 में इधर लिख रहा हूं ताकि तुम लोग को समझ में। 120 है, अभी 120 किससे जाएगा? ऑलरेडी यू कैन सी 120 क्लोजर तो क्या है? 112, सो 7 से जाएगा, 16 7 जा 112, ओके, तो 8 पड़ा रहेगा। इधर में भी कर सकते हैं 112, ओके, तो 8 पड़ा रहेगा। तो व्हाट यू गेट हियर आंसर? 17.187%। तो अभी भी आंसर नहीं आ रहा है, आंसर आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट है, तो हम लोग क्या करेंगे? सी 2 डिजिट, तो ये 7 है, तो क्या हो जाएगा? अगर राउंड ऑफ करेंगे, राउंड ऑफ भी मैंने सिखाया है, 1 और 8 हो जाएगा क्या? 9%। क्यों 9 हो जाएगा? क्योंकि नेक्स्ट डिजिट इज 5 above, okay, 5 and above is what? If it is, then this one will become 1 will be added, okay, so 17.19। तो आ गया आंसर, कौन सा होगा? नंबर रोमन 3, so रोमन 3 आंसर 17.19%। Now class 7 students will come to question number 1H. What it is telling? The simple interest on rupees 5,000 for 3 years at the rate of 3% per annum is. That means you have to find out the simple interest only. Simple interest 5,000 रुपया में 3 साल के लिए कितना ब्याज दर है? 3% पर एनम इज। तो सिंपल इंटरेस्ट तुमको निकालना है, तो कैसे करेंगे? इधर में रफ करते हैं नंबर एच। तो प्रिंसिपल दे दिया है रुपीज 5,000 और टाइम दे दिया है 3 साल, ठीक है, 3 years, और रेट कितना है? 3% पर एनम। तो हम लोगों ने फॉर्मूला जाना है, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू टी इंटू आर बाई 100। तो पी कितना है? रुपीज 5,000 इंटू 5,000, मैंने एक तो 0 कम लिखा है, उसके बाद 3, उसके बाद फिर से 3 बाई 100, तो 0 0 0 0 कैंसल्स। तो कितना पड़ा है इधर में? रुपीज 50 इंटू 3 3 9, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो रुपीज, 0 लिखेंगे, 9 5 45, तो आ गया रुपीज 450। तो किससे मैच हो रहा है? देखो पहला वाला, दैट इज रोमन 1, सो आंसर एच, ओके, रोमन 1 रुपीज 450 आ गया, ठीक है, इधर में आंसर आ गया। उसके बाद नंबर आई, सो नंबर आई कैसे कर रहे हैं? लास्ट एमसीक्यू, ओके, सो 84% स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, सो टोटल स्टूडेंट्स इज व्हाट? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इतना हम लोग को नहीं लिखना है क्योंकि ये एमसीक्यू है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 50, सो 84% स्टूडेंट्स इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स लाइक्स टू स्टडी मैथमेटिक्स। तो कितना परसेंटेज स्टूडेंट्स लाइक्स टू स्टडी मैथमेटिक्स? 84%। नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट्स डिड नॉट लाइक टू स्टडी मैथ्स? ओके, सो कितना बच्चा मैथ्स पढ़ने में दे लाइक इट, ओके, उन लोग पसंद करता है क्या मैथ्स पढ़ने का? तो 84%। सो व्हाट आई विल राइट? परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स लाइकिंग मैथ्स, ओके, शॉर्ट में लिख दे, ठीक है, कितना? 84%, और वी कैन राइट 84 ऑल्सो, बिकॉज हेयर आई रोट परसेंटेज, आई कैन राइट 84। देन यहां से निकल आएगा परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स नॉट लाइकिंग, ओके, नॉट लाइकिंग मैथ्स, तो वो कितना होगा? वो हमको निकालना है। तो टोटल आई टोल्ड यू इट इज 100%, तो क्या होगा? इधर में लिख रहे हैं 100 माइनस 84, तो कितना आ जाएगा? 100 माइनस 84, 16 आ जाएगा। दैट मीन्स 16% स्टूडेंट डोंट लाइक मैथमेटिक्स ओनली, ओके। सो यू हैव टू फाइंड आउट
हाउ मेनी स्टूडेंट्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, तो वो कैसे करेंगे? देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स not or does not like maths, okay, does not like to study maths, यही होगा सेंटेंस. ओके, डज नॉट लाइक टू स्टडी मैथ्स. तो वो कितना होगा? तो हाउ मच परसेंट डज नॉट लाइक? सो 16%. तो 16% ऑफ द टोटल इज व्हाट? 50. नाउ परसेंटेज को हटाने के लिए डिवाइड बाई 100 इंटू, ऑफ माने इंटू, एंड देन 50. क्लियर? अभी काटाकाटी करेंगे. 0 0 कट हो गया. अभी 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. क्लियर नो? अभी 2 1 जा 2, 2 8 जा 16. तो कितना आ गया? 8 स्टूडेंट्स. तो ये आ गया आंसर. 8 स्टूडेंट डज नॉट लाइक टू स्टडी मैथ्स. Here, which is the option? C, first only. Okay, so answer number I. So option, okay, this is also I, this is also Roman 1, this is I and this is Roman 1. So 8 आ गया. So I hope every student of class 7 you have understood how to solve the MCQs. Question number 1 from A to I, you have understood nicely. Okay, so practice these MCQs again and again so that in the exam you can do it correctly as well as quickly. वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मिलते हैं और एक अच्छे नए कंटेंट के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.